जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन कंट्रैक्चुअल डिपार्टमेंट के जो टीचर्स हैं उनकी तरफ से एक 3 दिन का पेन ड्राउन स्ट्राइक कर दिया गया है और इनकी काफ़ी सारी डिमांड्स हैं। इनकी डिमांड्स ये है कि हमें एक पर्टिकुलर नाम दिया जाए, कभी हमें एडॉक कहते हैं, कभी कंट्रैक्चुअल कहते हैं, कभी नीड बेस्ड कहते हैं, और साथ ही साथ इनका ये भी कहना है कि जो यूजीसी की गाइडलाइंस है उसके तहत हमें पे मिलनी चाहिए, यानी हमारी जो सैलरी है एज पर द यूजीसी गाइडलाइंस हमारे साथ होनी चाहिए। इस वक्त हम एसपी कॉलेज श्रीनगर में मौजूद हैं और जितने भी आप ये टीचर्स देख रहे हैं, ये प्रोफेसर्स को देख रहे हैं, ये तमाम तर कंट्रैक्चुअल प्रोफेसर्स हैं और इनकी डिमांड आप बिल्कुल सामने देख सकते हैं कि जो इन्हें एक फिक्स्ड अमाउंट मिलना चाहिए 57,700 रुपीज़ का एज पर द यूजीसी गाइडलाइंस। साथ ही साथ ये भी चाहते हैं जो हेल्थ और मेडिकल एजुकेशन डिपार्टमेंट में जो लोग हैं उनके साथ इन्हें भी एज पर SO 364 लाया जाना चाहिए और इन्हें एक प्रॉपर नॉमेनक्लेचर मिलना चाहिए, यानी एक प्रॉपर नाम मिलना चाहिए। इनका ये कहना है कि कभी हमें एडॉक कहते हैं, कभी हमें कंट्रैक्चुअल कहते हैं, कभी हमें नीड बेस्ड कहते हैं, जिसकी वजह से काफ़ी सारी परेशानियां भी होती है। आज इनकी स्ट्राइक का दूसरा दिन है और काफ़ी सारे प्रोफेसर्स ये हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे बात करने की कोशिश करते हैं, इनसे जानते हैं कि क्या कुछ इनके मसले मसाइल है और क्या सारी चीज़ें ये कहना चाहते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जी, आपका नाम क्या है? Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. This is Dr. Sheikh Kafa Gawhar and belongs to Department of Zoology. This is a peaceful resolution in front of government. We have penned down strike for 3 days. We want to put our demands in front of government that this is mere discrimination with us. They have so many times promises with us that we are going to give you good education, good salary, and we are making some policies for you. This is not from the last couple of days, it's from decades. Okay. And most of the youth have crossed their age limits. They are sit at home now. They are hiring new people, making new rules every year. Long before it, they were taking it on the basis of PG. Then they have make policies for MPhil. Then they need PhD. And in meantime, the people who have started when they were PGs, they have crossed their age limits. And after that, they said, we have need of yours now. UGC guidelines have changed. Now need PhDs. Okay. New recruits have been started. Now we are at that stage. We are almost near to the what is called as age limits. We too will be get expire, and they will then put some other demands. Now we need postdocs from foreign universities. So what are the major demands? Major demands is that they have selected us that on the basis of UGC guidelines. They check our degrees. They put a criteria over there. Your selection is as per UGC norms. And then as per UGC guidelines, our basic salary is 57,000 rupees that they are giving in UT Ladakh and other states also. Okay. It's only in Jammu and Kashmir they are not giving us. They have number of times, and this time they have, before advertisement they say that this time your pay hike is on cards. But when we have what's called a joint in the last couple of months, they says that, but at the end it was only 28,000. We hadn't get 75,000. Okay. So now this is a peaceful resolution in front of government that please, if you have promised a number of times in front of us, why you are wasting our time? If you think that we hadn't your need, then why you are advertising again and again? You can talk to the students. They will talk to you that how much workload is on us. We are at par with associates and assistant professors. They are getting in lakhs. Why it is discrimination? We too have families and we too are working with them. We have enough workload more than them. Then why it is the discrimination? They are playing games with us again and again. They once say us that if they hadn't need of us, they can close this chapter, and then they will see themselves how huge agitation will be in front of them. You can talk yourself to the students. Okay. They will discuss with you. So these are some demands in front of governments. It's a peaceful resolution. So please, whatever promises you have put in the past with us, please fulfill them that. Okay. Because we too have families, we have kids and all that. In our 28,000, what's that amount? Yes. So काफ़ी सारी इनकी डिमांड्स है और भी लोगों से बात करते हैं और भी प्रोफेसर से बात करते हैं, क्योंकि जो इनकी बातें हैं, जैसे इन्होंने भी कहा कि हमें कहा गया था कि 57,700 इस बार पे हाइक होगी, बट दे आर स्टिल गेटिंग 28,000 रुपीज़। एंड एज पर द प्रोफेसर्स हेयर, इनका कहना है कि लद्दाख में 57,000 रुपीज़ उन्हें सैलरी मिलती है जो भी कंट्रैक्चुअल टीचर्स हैं। सो व्हाट आर द अदर डिमांड्स? इसके अलावा जो आप पे हाइक कहते हैं कि सैलरी एक फिक्स्ड अमाउंट में होनी चाहिए, उसके साथ साथ और क्या चीज़ें हैं जिन पे आप स्ट्रेस कर रहे हैं? देखिए, पहली डिमांड तो यही है, सैलरी हाइक होनी चाहिए, लेकिन नंबर सेकंड जो डिमांड है वो हमारी कंटिन्यूशन होनी चाहिए, क्योंकि हमें हर साल हायर किया जाता है, फिर हमें वेरिफिकेशन करनी पड़ती है, दैट टू CID वेरिफिकेशन। CID वाले भी परेशान होते हैं, अभी तो 6 महीने पहले ही आपको वेरीफाई करके दिया, फिर कौन सा फॉर्म आप भर रहे हो। इसलिए हम चाहते हैं कि जैसे मेडिकल एंड हेल्थ एजुकेशन पे उनको 3 साल के लिए कंटिन्यूशन रखा जाता है, हमें भी उसी तरह, ताकि हम भी बिल्डअप कर सके। और मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, अगर हम
यहाँ पे काम करते हैं, हमारी जो एक्सपीरियंस है वो वैलिड नहीं है जम्मू से बाहर। अगर हम फॉर्म भरते हैं बाकी यूनिवर्सिटीज़ में, वहाँ हमें बोलते हैं आपकी लास्ट पे कितना आप ड्रॉ कर रहे थे। जब हम देखते हैं हमारे पास 28,000 है तो वो कहते हैं तो आप तो असिस्टेंट प्रोफेसर का काम ही नहीं करते हैं। लेकिन ये सबको पता है J&K में, स्पेशली इन जम्मू रीजन एंड कश्मीर, कि हम लोग बराबर जितने भी असिस्टेंट प्रोफेसर्स जो वर्कलोड है उससे ज़्यादा ही हम लोग काम करते हैं। तो इसलिए हमारी सेकंड डिमांड होगी कि जो मेडिकल एंड हेल्थ एंड एजुकेशन में उन्होंने कंटिन्यूशन रखा SO 364 के तहत, हमारा भी एटलीस्ट एट पार उनके साथ करे। थर्ड है कि हमारा रिवाइज्ड नॉमेनक्लेचर हो, जो हमें अगर कोई चाहे 2 साल 3 साल यहाँ पे काम करे, फिर वो बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए इंडिया के किसी भी स्टेट में काम कर सकता है, फॉरेन जा सकता है, उसकी वो एक्सपीरियंस वैलिड हो। जब वो ये नॉमेनक्लेचर चेंज करेंगे तब जाके हमारी वो एक्सपीरियंस वैलिड हो। ये बेसिक 3 डिमांडें हैं। सरकार बनने से पहले हम हर किसी पार्टी के पास गए, इवन कि गवर्नर साहब LG साहब के पास भी गए, उनको हमने बोला कि हमारी ये डिमांड। उन्होंने कहा कि इलेक्शन होने दो, जो ही इलेक्शन होगा, पहला जो सेशन होगा बजट का, उसमें आपकी डिमांड हम फुलफिल कर देंगे। अब पता ही नहीं है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि ये लोग क्या कह रहे हैं कि फाइनेंस डिपार्टमेंट की वजह से कोई क्वायरीज वगैरह उठी है। उसमें अगर क्वायरी उठी है तो वो पुट अप कर सकते। इतने सारे असिस्टेंट प्रोफेसर्स काम कर रहे हैं पूरे जम्मू एंड कश्मीर में, ये जब लद्दाख कर सकता है तो जम्मू एंड कश्मीर क्यों नहीं कर सकता है? अगर GDP में देखेंगे तो लद्दाख तो बहुत पीछे है जम्मू एंड कश्मीर से। तो अगर इनके पास बजट भी नहीं है, अगर हम स्टूडेंट्स को बोलेंगे जस्ट इंक्रीज इनकी जो फीस है 50 रुपए, इनको बोलेंगे कि ये सैलरी हम दे, ये जो इंक्रीज कर रहे हैं ये हम इस पे खर्च करेंगे जो आपको कॉन्ट्रैक्चुअल, मुझे लगता है बच्चे जब सुनेंगे कि 50 रुपए इंक्रीज, वो 200 रुपीज देंगे, ताकि उनको पता है, क्योंकि उनको कौन पढ़ाता है कॉलेजेस में। तो इस वजह से हम चाहते हैं कि एक तो हमारी सैलरी इंक्रीज हो, एंगेजमेंट 3 इयर्स के लिए हो, और रिवाइज्ड नॉमेनक्लेचर। जो नॉमेनक्लेचर की डॉक्टर साहब आप बात कर रहे हैं, क्या एक पर्टिकुलर नॉमेनक्लेचर ना होने की वजह से भी प्रॉब्लम देखने को मिलती है? यस, ये तो जाहिर सी बात है। हमारे कोलीग्स है 1-2 जिन्होंने 1 साल इधर काम किया, उनको बेंगलोर में, हैदराबाद में अपॉर्चुनिटी मिली, उन्होंने क्वालिफाई भी किया इंटरव्यू, लेकिन जब उन्होंने देखा कि इनकी जो प्रीवियस एक्सपीरियंस थी वो किस बेस पे, उन्होंने किस लेवल पे थी, तब जाके वो रिजेक्ट हुए। अब हम अगर कहते हैं कि हम लोग जी बाहर भी काम करेंगे, लेकिन एटलीस्ट वो नॉमेनक्लेचर तो सही से रखो, ताकि हम लोग जम्मू कश्मीर को छोड़ के बाकी स्टेट्स में भी काम कर सकते हैं। लेकिन ना हमें यहाँ का छोड़ रहे हैं, ना वहाँ का रख रहे हैं। तो इसलिए हम चाहते हैं कि एटलीस्ट इसमें तो फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन तो नहीं है। इसमें अगर नॉमेनक्लेचर चेंज करना है, इसमें कोई फाइनेंशियल इम्प्लीकेशन तो है नहीं। नॉमेनक्लेचर हम चाहते हैं कि असिस्टेंट प्रोफेसर लेवल 10 का पोस्ट है, वही नॉमेनक्लेचर हमें रखा जाए। हाँ। अभी हाल ही में जब से सरकार बनी है, तब से किसी सरकारी ऑफिशियल से, किसी मिनिस्टर से, किसी ब्यूरोक्रेट से, उसके बाद बात हुई आपकी? क्या कुछ एश्योरेंस वहां से मिली? हम लोग गए, हमने मेमोरेंडम भी दिया, बोल रहे हैं कि हम जी देख रहे हैं, करेंगे आपका। इससे पहले भी बहुत सारी, क्योंकि आप देखो ये बहुत सालों से चलता आ रहा है। अभी हम 28,000 ले रहे हैं, लेकिन ये 2018 में हाइक हुई है। आप देखो 2018 से लेके हम 2025 में आए। मुझे बताओ, एक बंदा जो कॉलेज में काम कर रहा था, जो तब अनमैरिड था, उसने इन सालों में उसकी शादी भी हुई है, उसके बच्चे भी हुए हैं, वो स्कूल भी जा रहे हैं। मुझे बताओ 28,000 में वो करेगा क्या? वो फीस भरेगा, वो मीटर की बिल भरेगा या रेंट भरेगा? क्योंकि बहुत सारे कोलीग्स हैं जो बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में, सिटी कॉलेजेस में काम कर रहे हैं। तो मुझे बताओ 28,000 में वो खाना खाएगा या रेंट भरेगा या घर पैसे भेजेगा? तो ये जेन्युइन डिमांड है। तरफ से कोई एश्योरेंस कुछ ऐसा देखने को मिला हाल ही में? इलेक्शन से पहले तो सभी ने वादा किया, लेकिन इलेक्शन के बाद कोई उसमें पेशरफ्ती नहीं हो रही है। अब मुझे पता ही नहीं है, इनकी अपनी सरकार है, अपने, ये तो इनके हाथ में है। जब वक्फ बोर्ड का इन्होंने इंक्रीज कर दिया, हालांकि उसकी कोई और है जो उसको हेड कर रहा है, लेकिन एटलीस्ट जब उनको लगा कि वक्फ के लिए जस्टिस की जरूरत है, तो कॉलेजेस
जो टीचर्स हैं उनके लिए तो जस्टिस की बात नहीं कर रहा है कोई। फिलहाल ये स्ट्राइक कहाँ देखने को मिल रही है और कितने दिन के लिए है? ये हमने लास्ट मंथ भी की थी 1 दिन के लिए। तब हमने गवर्नमेंट को भी मेमोरेंडम दिया था, जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं उनको बोला था कि हम जी ये स्टेप लेने जा रहे हैं अगले मंथ में, अगर आपने इस डिमांड को फुलफिल नहीं किया। जब हमें लगा कि वहां से कोई पेशरफ नहीं हुई, फिर हम मजबूर हुए, हमने 3 दिन की कॉल दी। तो ये आज दूसरा दिन है। तो अभी हम कह रहे हैं कि अगर आपने इस डिमांड को फुलफिल नहीं किया, कम्युनिकेशन स्टार्ट नहीं की, तो शायद ये आगे और भी हो सकता है। फिलहाल एज ऑफ नाउ ये 3 दिन के लिए है। हमारी एसोसिएशन बैठेगी, वी विल डिस्कस, वी विल टेक कॉल फ्रॉम ऑल द डिस्ट्रिक्ट्स, दोनों डिवीजन मिलके, क्योंकि ये खाली कश्मीर में नहीं है, आप जम्मू में भी देख सकते हो। जितने भी कॉलेजेस है, चाहे वो यूनिवर्सिटी के तहत है, चाहे वो क्लस्टर यूनिवर्सिटी के तहत है, वो सभी एक पेज पे हैं। हर कोई डिमांड कर रहा है कि एटलीस्ट हमारी ये बेसिक 3 डिमांडें फुलफिल की जाए और जेन्युइन डिमांडें हैं। ऐसा नहीं है कि हम कोई पहाड़ इनसे मांग रहे हैं। 57,700 की सैलरी मांग रहे हैं नॉमेनक्लेचर में, जिसमें कोई फाइनेंशियल इंप्लीकेशन नहीं है, वो मांग रहे हैं और कंटिन्यूएशन मांग रहे हैं। सरकार, मुझे लगता है अगर ये चेक करेंगे एक बंदे की वेरिफिकेशन पे कितना पैसा लगता है, मुझे लगता है उससे कम ही होगा, क्योंकि हर साल हो रहा है ना कि एक बंदे को आप वेरीफाई कर रहे हो। मोर देन 600 जम्मू, और मुझे लगता है उससे ज्यादा ही होगा, अराउंड 3000 जब उनकी लगते हैं, फिर वेरिफिकेशन हो रही है। अगर आप उसका बजट देखोगे, मुझे लगता है बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा है। मैं आखिर में आपसे इतना जानना चाहूंगा, अगर हम सिर्फ इस कॉलेज की बात करें तो कितने कुल मिला के कंट्रैक्चुअल प्रोफेसर्स आपको? अराउंड 70 एसपी कॉलेज। ओवरऑल कितने कंट्रैक्चुअल्स हैं? मोर देन 3000। मोर देन 3000। थैंक यू सो मच। तो ये कुछ चीजें हैं इनकी जम्मू कश्मीर हायर एजुकेशन कंट्रैक्चुअल टीचर्स एसोसिएशन की डिमांड्स है, और ये इस वक्त हम एसपी कॉलेज में मौजूद है। और न सिर्फ इधर बल्कि जम्मू कश्मीर के जितने भी कॉलेजेस में कंट्रैक्चुअल टीचर्स हैं उनकी तरफ से एक प्रोटेस्ट है। और जैसा इन्होंने कहा, एक बार फिर से बता दूं, इनकी डिमांड सबसे पहले तो सैलरी हाइक के हवाले से है कि 57,700 रुपीज एज पर द यूजीसी गाइडलाइंस हमारी सैलरी हो जानी चाहिए। अभी ये 28,000 रुपए लेते हैं और ये पे हाइक इन्हें 2018 में मिला है। 2018 से पहले ये इससे भी कम सैलरी ड्रॉ करते थे। उसके साथ साथ ये चाहते हैं कि हमें एटलीस्ट 3 साल के लिए हायर किया जाए, हर साल हमें कंट्रैक्ट ना बदलना पड़े, हर साल हमें वेरिफिकेशन के लिए ना जाना पड़े। और आखिर में एक नॉमेनक्लेचर सेट किया जाए, क्योंकि एक डेजिग्नेशन फिक्स होगी। असिस्टेंट प्रोफेसर की डेजिग्नेशन की डिमांड ये कर रहे हैं जो लेवल 10 पे आता है, और वो जब इन्हें मिल जाएगी तो ये बाहर के कॉलेजेस के लिए, यूनिवर्सिटीज़ के लिए इजीली अप्लाई कर सकते हैं और एलिजिबल बन जाते हैं। और काफ़ी सारे टीचर्स हैं, जिसमें इन्होंने कहा कि कुल मिला के 3,000 से 3200 टीचर्स या प्रोफेसर्स जिन्हें हम कहें जम्मू कश्मीर के कॉलेजेस में अभी पढ़ा रहे हैं, और सारे के सारे कंट्रैक्चुअल हैं या नीड बेस्ड जिन्हें हम कहते हैं। और उसके साथ साथ काफ़ी वक्त से जो ये काम कर रहे हैं, और हर साल इन्हें अपनी री रजिस्ट्रेशन करनी पड़ती है, रीवेरिफिकेशन करनी पड़ती है। और इनका ये भी कहना है ये साल के 12 महीने सैलरी ड्रॉ नहीं करते हैं, कभी कभी 7 महीने, कभी 8 महीने, कभी 9 महीने, बाकी 3 से 4 महीने इन्हें सैलरी भी नहीं मिलती है। तो ये कुछ डिमांड्स लेके जेके हेक्टा अभी गवर्नमेंट के सामने आई है। इनमें से कुछ प्रोफेसर्स का ये कहना भी है कि जो नासिर असलम वानी है, एडवाइजर टू द चीफ मिनिस्टर, ये उनसे भी मिले, उनसे इनकी मुलाकात हुई और उन्होंने इन्हें कहा है कि 3 दिन का वक्त दीजिए, 3 दिन के बाद इनसे एक बार फिर बात होगी। लेकिन फिलहाल इनकी 3 दिन की स्ट्राइक का आज दूसरा दिन है। कल एक और दिन ये पेन डाउन स्ट्राइक करेंगे, और उसके बाद आगे क्या कुछ सरकार की तरफ से कम्युनिकेशन होगी, आगे का फैसला उसके बाद देखा जाएगा। अभी के लिए इतना ही। कैमरा पर्सन उमर डार के साथ शादाब गिलानी, कश्मीर लाइव, श्रीनगर।